Hello everyone. In the last discussion, we have finished chapter number 10, which was based on the vectors, dot product and cross product. Now we'll start with next chapter is 3D, three-dimensional geometry. In this chapter, we will study straight line and plane. Mainly two chapters, straight line and plane in 3 dimension. Because already last year we have studied straight line in 2 dimension, different forms of straight line. But here we have to study with the help of Cartesian form as well as vector form using vectors. Cartesian form as well as vector form is using vector, dot product, cross product, and knowledge of 3D also. Last year in 3D one chapter was there, chapter number 12 in 11th class. There we have studied number of octants, 8 octants are there, and coordinates of different points in different octants on x-axis, y and z coordinate all 0. All these points of last year of class 11, which was known as local class, will be used here. That basic concept of the 3D. Once again, I already taught vector in 3D and 2D. No, xi plus yj plus zk. That time I told is in the 3D the same theory will be used. Directions, cosines, and directions ratios. Once again, I am explaining. Three-dimensional geometry. X-axis, y-axis, z-axis, 0, 0, 0 origin. Any point on the x-axis, p, x, y, z, 0. Any point on the y-axis, y, x and z, 0. Any point on the z-axis, z coordinate, x and y coordinates are 0. And the coordinates of origin are 0, 0, 0. Any point you considered here, P with coordinates a, comma b, comma c, or x, comma y, comma z. Any point in xy plane, z coordinate is 0. We write it x, y, 0. Any point P. We are always assuming showing the point P, any point is P. If it is in yz plane, we denote it by any point in yz plane, xz, x equal to 0. And in yz plane, x coordinate will be 0. Any point in xz plane, this is xz plane, y equal to 0. Any point will be having coordinate x, 0 and z. This is known as xz plane. This is known as yz plane. This was from 11th class I am writing this theory, yz plane. And this plane is known as xy plane. This point P is in space. This point is in space. Okay, xyz or abc. We are denoting by xyz or abc. Distance between 2 points. We have used the formula distance between 2 points. Distance between 2 points. If suppose there are 2 points x1, y1, z1 and x2, y2, z2, q, then the coordinates will be, what will be the coordinate of, what will be the distance between these 2 points? PQ equal to square root of x2 minus x1 whole square. I am writing here summation, that you know how the meaning of summation is y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. Sometimes we can write like this also in short form. Distance, then section formula. Section formula, x equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. याद आ गया? y equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, and z equal to m1 z2 plus m2 z1 upon m1 plus m2. This was the first case. And then the midpoint x1 plus x2 by 2
y equal to y1 plus y2 by 2 and z equal to z1 plus z2 by 2. Midpoint. This was internal division. Internal division. This is midpoint. All of you, please note down it fast. Do not use the screenshot. You can take the screenshot, Mahak, but everyone will write in their notebook. I will ask one student to share right now. Any student I can ask out of the 75 students in the class, please share it, because this is very important theory and the later stage you will regret, अरे उस समय हम note कर लेते. That's why I am forcing you. Please note down fast. Mahak, screenshot done. Raman. Okay, all of you have noted. Jayesh, just right now you share in the group. Jayesh, Sanskar. I told two names in the class, Sanskar and Jayesh. They are going to share at 9:59 in WhatsApp group of maths of class 12th D. Both are in 12th D, are going to share at 9:59 in 12th D maths group. So this was the basic of this 3D. I'm writing some more formulas, because without these formulas you cannot understand 3D in vector form. In vector, with the help of vector we have to study. So 5 students left. Don't take the attendance. When I ask you, that time only you take the attendance. 5 students left out of 75. Now 70 are there. One more join. Again join. They are knowing that sir is asking. So C point, external division. External division, x equal to m1 x2 minus m2 x1 upon m1 minus m2. Similarly, y equal to m1 y2 minus m2 y1 upon m1 minus m2, and z equal to m1 z2 minus m2 z1. Just let me know which parts are removed
from the 3D chapter number 11 for the 2021 board exam, which parts are removed? This syllabus is deleted. Please let me know. Naman, Animesh, you can copy and paste here so that it will be easy to see what part is removed from 3D in chapter number 11. Centroid x1 plus x2 plus x3 by 3, y equal to y1 plus y2 plus y3 by 3, and z equal to z1 plus z2 plus z3 by 3. So this was the distance formula first, and the second point was section formula, and the different coordinates, octants. There are 8 octants that you know. Eight octants. O X Y Z, O X dash Y Z, O X Y dash Z, O X Y Z dash. Are you remembering? Plus, 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 minus, plus, 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 minus, plus, 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 minus. Then O X dash Y Z dash. This was negative, positive, negative. Then O X Y dash Z dash. Positive, negative, negative. O X dash y dash z, negative, negative, positive. O X dash y dash z dash, negative, negative, negative. X Y Z, X Y Z. Octants. In different octants, sign of the points in different octants. 11th class. Okay. So the parts which are removed from the class 12 3D, angle between two lines, two planes, and line and plane. Okay, these three topics in three-dimensional geometry. Angle between two lines, two planes, and line and plane. Okay, दोनों ने यही लिखा है. तो angle between two lines, two planes, and plane, and line and plane. Okay. I'm just writing the formula because these formulas will be used in, I told you, 5 times this formula will be used, even it is removed from the syllabus, but maybe used in other topic also. Is very important formula. So anyhow, I have to write the formula. Will not discuss the question based on the angle between two lines. But in 3D, we have to study. Now take the screenshot. Taken. Blur है. Now direction cosines, directions ratios,
of a line. X, Y, Z. Suppose this is a line OP. Okay, it is in vector form, OP vector. Vector OP is making angle alpha with x axis, beta with y axis, and gamma with z axis. Three different angles. Then cos alpha equal to L, cos beta equal to M, cos gamma equal to N. इसको हम बोलते हैं डायरेक्शंस कोसाइंस. पहले भी पढ़ा दिया है मैंने, इसको जस्ट वापस लिख रहा हूं तो क्योंकि यहाँ ज्यादा यूज होने वाली है डायरेक्शंस कोसाइंस. डीसीएस शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम इसको. दीज आर द डायरेक्शंस कोसाइंस. इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम ए बी सी और एक्स वाई जेड लेते हैं, ए बी सी इसको हम बोलते हैं डीआरएस, और ए एक्स वाई जेड इनको हम बोलते हैं डीआरएस ऑफ ओपी वेक्टर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और एबीसी को हम डीआरएस बोलते हैं. डीसीएस आर यूनिक बट DRS are not unique. For OP vector, DCS are LMN. For PO vector, DCS are minus L, minus M, minus N. क्योंकि पाई माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पाई माइनस अल्फा यूज हो जाएगा. ये भी पहले पढ़ा चुका हूं मैं, कॉस पाई माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा होता है. तो अगर आप ओपी वेक्टर की डीसीएस एलिमेंट ले रहे हैं तो पीओ की कितनी हो जाएगी, पीओ वेक्टर की फॉर ओपी डीसीएस दिस, फॉर पीओ माइनस एल माइनस एम एंड माइनस एन. एंड इसके स्क्वायर का सम 1 होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1. कॉस अल्फा इक्वल टू एल इक्वल टू एक्स अपॉन आर, cos बीटा इक्वल टू एम इक्वल टू वाई अपॉन आर, ये भी बता दिया है सब. cos गामा इक्वल टू एन इक्वल टू जेड अपॉन आर. ये सब फॉर्मूले हैं जो मैं पहले 3D में पढ़ा चुका हूं आपको वेक्टर के अंदर. एक बार वो लिख रहा हूं फॉर्मूले ताकि आपको याद आ जाए, क्योंकि इनका ज्यादा यूज अब होने वाला है. उस समय कुछ क्वेश्चन ही आए थे एक्सरसाइज में, अब ज्यादा आएंगे. एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1. एल इक्वल टू ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. m equal to b upon root of a square plus b square plus c square. n equal to c upon root of a square plus b square plus c square. प्लस माइनस लगाया था अगर आपको याद हो तो. इसमें बोला था l is proportional to a, m is proportional to b, n is proportional to c. ठीक है. DRS and DCR are proportional, ऐसा लिखा जाता है. l is to m is to n is equal to a is to b is to c. DCS and DRS are in proportion. ये OP वेक्टर की बात हुई है यहाँ पर. इसके टिप के कोऑर्डिनेट A B C थे तो अपन ने ABC की टर्म में लिखा है. सब कुछ बुक में XYZ में भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको. ये OP वेक्टर की बात की है हमने, यहाँ पर OP वेक्टर लिख सकते हैं हम. OP वेक्टर मतलब इसका एक पॉइंट कहाँ पर लिया है हमने, इनिशियल पॉइंट हमने कहाँ लिया है, ओरिजिन पर लिया है. अब हम इसको जनरलाइज कर देते हैं. अगर हम ओपी की प्लेस पर इसको कहीं शिफ्ट कर दें तब इसके डीआरएस डीसीएस क्या होंगे किसी भी वेक्टर के. तो देखो आप ध्यान से, लुक हियर, जो डीसीएस है जो डीआरएस है सॉरी, इसमें से इसको माइनस कर दें, मतलब माइनस कर दें 0 0 0 लिख देता हूं. a माइनस 0, b माइनस 0, c माइनस 0, तो वो क्या हो जाते हैं डीआरएस. और अगर इसकी लेंथ से, इसकी जो लेंथ है इसको मॉड आर लिखते हैं. मॉड आर जो इसकी लेंथ, उसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूं. आर केप इक्वल टू होता है ना एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, और आर वेक्टर कितना होता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के. ये सब फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं वंस अगेन, जो हम पहले लिख चुके हैं. आपको लग रहा है ये सब क्या लिखे हैं, तो ये सब पहले वाले फॉर्मूले वापस लिखे हैं. आर वेक्टर में एबीसी आते हैं, आर केप में एलएमएन आते हैं, बता चुका हूं ना मैं आपको. केप के अंदर एलएमएन और वेक्टर्स में एबीसी. अगर हम इसके मॉड से डिवाइड कर दें वेक्टर को तो वो केप बन जाता है यूनिट वेक्टर. मॉड कैसे फाइंड करते हैं, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. मतलब a माइनस 0
B माइनस 0, C माइनस यूज होगा कंसेप्ट में, ऐसे बोलूंगा इस तरह से। इसका मतलब है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। दो पॉइंट्स अगर आपको दे रखे हैं इनिशियल और टर्मिनल, तो उनके एंड पॉइंट्स को माइनस कर दें, एंड पॉइंट में से इनिशियल को माइनस कर दें एक कोऑर्डिनेट्स को, तो डीआरएस बनते हैं, और उसकी लेंथ से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाते हैं, डीसीएस बन जाते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पॉइंट में मैं यही बता रहा हूं, डायरेक्शंस कोसाइन एंड डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ ए लाइन with initial and terminal point. फिर लाइन पी क्यू वेक्टर, देखो अब पी क्यू वेक्टर आ गया है ना, मतलब ये वेक्टर हो गया पी क्यू वेक्टर, पी क्यू, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो पी क्यू कितना आएगा, डिस्टेंस तो आपको पता है, डिस्टेंस पी क्यू वेक्टर का मॉड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सॉरी, ये लेंथ है पी क्यू। तो डीआरएस अभी जैसा मैंने आपको बताया, x में से x माइनस कर दो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये तो डीआरएस है, डीआरएस ऑफ पी क्यू वेक्टर। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये डीआरएस है। एंड डीसीएस क्या हो जाएंगे, डीसीएस ऑफ पी क्यू वेक्टर विल बी, देखो x2 माइनस x1 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, PQ से, लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा, जस्ट अभी बताया मैंने आपको, PQ से डिवाइड, मतलब ये कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं ना हम, इसलिए तो ये दोनों रेशो में, ये कांस्टेंट हटा देंगे तो रेशो में आ जाएंगे, सब प्रोपोर्शनल कहते हैं जिसे हम। तो ये किसको डिनोट करते हैं, डीसीएस को, ये डीसीएस है, ये एल है, ये एम है, एन, ये एलिमेंट किसके हैं, PQ के। अभी तक अपन एलिमेंट किसके लिखते आ रहे थे, ओपी वेक्टर, जिसमें ओ ओरिजिन पे था। अब ये ओरिजिन कहीं पे भी, मतलब ओरिजिन को हमने उठा के कहीं और रख दिया और वहां से हमने लाइन ड्रॉ करी, तो उसका कंसेप्ट ये होता है कि डिस्टेंस जो एक्स कोऑर्डिनेट से उनका डिफरेंस, एक्चुअली करा क्या जाता है कि उस लाइन को शिफ्ट कहां पे कर दिया जाता है, ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया जाता है, फिर उसके डीसीएस निकाले जाते हैं, फिर लाइंस पैरेलल है तो डीआरएस का रेशियो इक्वल होता है, दैट कंसेप्ट इज यूज्ड। मतलब अगर आपको एक ऐसी लाइन की डीसीएस फाइंड करना है ना, ये इसके, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल यहां से एक लाइन बना देंगे, ये इसके डीसीएस फाइंड करेंगे, जो इसके डीसीएस है वही इसके डीसीएस है, जो इसके डीआरएस है वही इसके डीआरएस है, विथ रेशो, वही है मतलब रेशो में। इसलिए कंसेप्ट तो ये है कि अगर आपको इसके डीआरएस फाइंड कर रहे हैं, सपोज दिस इज पी क्यू, तो पी क्यू के डीआरएस फाइंड करने के लिए हम इसके यहां से ओ से उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ओ आर। वेट, सभी को ब्लर दिख रहा है, हेलो हेलो एवरीवन, नाउ क्लियर, ओके। तो अगर हमें किसी ऐसे वेक्टर के डीसीएस और डीआरएस फाइंड करने हैं जिसमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इनिशियल एंड टर्मिनल, तो पहले तो आप क्या करो, ये माइनस कर दो। इसका मतलब समझ रहे हैं, x2 माइनस x1,
y2 minus y1, z2 minus z1. So this minus this minus this, ये क्या हो गया DRS. और लेंथ से डिवाइड कर दो, लेंथ तो फाइंड करना आती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अभी फॉर्मूला लिखा मैंने सबसे पहला फॉर्मूला 3D में, उससे डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगे DCS. सो DRS और DCS में ये रिलेशनशिप होती है कि अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो DRS DCS, अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन एंड इफ पॉइंट्स आर नॉट गिवन देन एंगल मस्ट बी गिवन. तो फिर अल्फा बीटा गामा है तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा से हम फाइंड कर लेंगे. 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन अगर x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ में एंगल जो बनाती है वो गिवन हो, देन वी कैन फाइंड द DRS, okay, and DCS. But if angles are not given तो क्या गिवन होंगे? 2 पॉइंट्स. जैसे पिछले साल आपको याद होगा tan थीटा फाइंड करते हैं, स्लोप tan थीटा m इक्वल टू, और 2 पॉइंट्स दिए थे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप का फॉर्मूला. वो जो स्लोप का काम वहां करती थी स्ट्रेट लाइन की, कौन? स्लोप. वही काम यहाँ पे DRS और DCS करते हैं, DCS करते हैं स्पेशली डायरेक्शन के लिए 3D के अंदर, वेक्टर और लाइन के लिए. तो 3D में हम ये वेक्टर और लाइन का भी, स्पेशल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस भी पढ़ेंगे हम आगे. अभी हम क्या कर रहे हैं, 3D लाइन के अंदर लाइन की DRS और DCS क्या होते हैं वो चीज पढ़ रहे हैं. जैसे हमने पहले स्लोप पढ़ी थी, स्लोप ऑफ ए लाइन, ऐसे ही वो पढ़ रहे हैं हम DRS एंड DCS ऑफ ए लाइन. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ये 4th नंबर का पॉइंट था शायद. 5th, एंगल बिटवीन लाइन्स. 2 cases are there. DRS given, DCS given. DRS given मतलब A1 is to B1 is to C1, ऐसे A1 B1 C1 and A2 B2 C2. ये सिलेबस में से हटा दिया, एंगल फाइंड करना. डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन दूसरे चैप्टर्स के अंदर तो इसको यूज हो रहा है. DCS मतलब दूसरे कंसेप्ट में इसका यूज होना है, इसलिए मेरे को फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा. DCS गिवन. देखो उन्होंने क्यों हटाया, मैं आपको ये बता देता हूं. जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये फॉर्मूला 5 बार यूज होता है, तो ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट में मैं आपको बता चुका हूं इस फॉर्मूले को, cos थीटा इक्वल टू, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है. तो जो फॉर्मूला वहां यूज हो रहा है वही यहाँ यूज हो रहा है, तो उन्होंने इसको इसलिए हटा दिया, स्टूडेंट को वहां ऑलरेडी याद हो चुका है. समझ रहे हैं आप? मतलब यूज तो कर सकते हैं ना अपन, क्योंकि फॉर्मूला हम तो बोलेंगे, हमने तो वेक्टर में पढ़ा तो दिया था आपको डॉट प्रोडक्ट के अंदर, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन रूट ऑफ 2 चम्मच, याद है बोला था चम्मच फॉर्मूला, वही है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इस केस में, DRS जब गिवन है, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन 2 चम्मच, ऐसे लिखा था अपने, चम्मच फॉर्मूला नाम दिया था इसको, A1 B1 C1 A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर. और इसमें क्या नाम दिया था, cos थीटा इक्वल टू, इसमें चम्मच गायब हो जाती है क्योंकि स्क्वायर का सम 1 होता है ना डायरेक्शंस को साइन, इसलिए ये 2 फॉर्मूले हैं. अब आप ये बोलें कि ये फॉर्मूले हमारे इस वाले चैप्टर में नहीं है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो कि नहीं है, लेकिन मैं बोलूं ये वाले फॉर्मूले तो हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा दिए, तो बोलो हाँ सर पढ़ा दिए, तो वहां पे का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने यहां से रिमूव किया. तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. इसके रिमार्क्स बोला था आपको मैंने, रिमार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके. लाइंस आर पैरेलल, क्या कंडीशन लिखेंगे, A1 अपॉन A2 इक्वल टू P1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 इक्वल टू K, एंड L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इक्वल टू K. Lines are parallel. Remark 1. Remark 2. Lines are perpendicular. क्या कंडीशन है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0. और एक और कंडीशन, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0. तो ये 2 कंडीशंस हैं लाइंस को पैरेलल बताने की और ये परपेंडिकुलर प्रूव करने की. लाइंस बोल रहा हूं, वहां वेक्टर बोला था, यहाँ लाइंस है,
तो लाइंस के डीआरएस और डीसीएस दिए तब कौन से फॉर्मूले लगाने हैं, ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। इस थ्योरी पर बेस्ड फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1 जो मैंने ये पढ़ाया है। एक्चुअली ये सब 90% तो इसमें से आपने पहले पढ़ रखा था, 3D के अंदर पढ़ा दिया मैंने। 3D का मेरा मतलब है वेक्टर्स के जब कंपोनेंट्स की थ्योरी पढ़ाई थी मैंने, तब डीआरएस डीसीएस ऑफ ए वेक्टर इन 3D, वही चीज मैंने वापस यहाँ एक बार आपको लिख के दी। अभी 15 मिनट में मैंने वही चीजें रिवाइज करके एक बार फिर लिख दिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। इसके नोट करने के लिए भी इसलिए बोला था कि ये सब थ्योरी नोट कर लो आप इसके अंदर। फर्स्ट नोट इसलिए करवाया था मैंने आपको फर्स्ट पेज, ताकि आपको ध्यान देगा कि सब नोट करके रखना है। स्क्रीनशॉट कहां ढूंढते रहोगे बार बार, इन्हें नोट कर लो। जयेश ने शेयर कर दिया होगा, मैंने बोला था जयेश को और संस्कार 2 स्टूडेंट को बोला था शेयर करने के लिए 9:59 पर। Exercise 11.1. This is based on the theory of 3D. If a line make angle 90 degree, 135 degree and 45 degree with x, y and z axis respectively, find its direction cosine. अभी बताया मैंने आपको, अगर एंगल्स दे रखे हैं तो अपन डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा इक्वल टू 90, बीटा इक्वल टू 135 एंड गामा इक्वल टू 45 डिग्री। अल्फा बीटा गामा आर गिवन। अगर हमको एंगल्स गिवन है, इफ यू हैव द एंगल्स, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। एल इक्वल टू कॉस अल्फा मीन्स कॉस 90 0, एम इक्वल टू कॉस बीटा cos 135 minus 1 by root 2 and n equal to cos gamma cos 45 1 by root 2. You can observe that sum of the square is 1. Find the direction cosine of a line which makes equal angle with the coordinate. Yeah, already done. Question number 2 पहले कर लिया है हमने। 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3 आंसर आया था। Sorry. If a line has the directions ratios -18 12 -4, ये डीआरएस को डिनोट करने का तरीका है। ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -18:12:-4, ये भी नोटेशन है डीआरएस को डिनोट करने का। देन व्हाट आर द डायरेक्शंस कोसाइंस, हमको क्या फाइंड करना है, डीसीएस फाइंड करना है। डीआरएस गिवन है तो डीआरएस गिवन है तो डीसीएस फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम इक्वल टू बी अपॉन एंड एन इक्वल टू सी अपॉन सेम टर्म डिनोमिनेटर में। तो ए कितना है -18 अपॉन इनके स्क्वायर का सम। आप चाहें तो इसके अंदर रेशो में है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9:-6:2, ये भी लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दिया, -2 से डिवाइड कर दिया, रेशो में है ना इसलिए। फॉर वन लाइन देयर आर नंबर ऑफ डीआरएस, ऐसा बताया था मैंने आपको, इनफाइनाइट डीआरएस होते हैं, यूनिक नहीं होते हैं। सो -18 अपॉन -18 स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, मैंने बताया आपको नंबर छोटा करने के लिए, प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ऐसे 12 अपॉन ये टर्म कितनी आएगी देख लो यहां से, कोई बताएगा कितनी आ रही है टर्म, ये कितना आ रहा है 324
18 का स्क्वायर 22, ओके, माइनस 18/22, 12/22 and minus 4/22. This gives us minus 9/11, 6/11 and minus 2/11. यार ये तो सम 1 तो आ नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या हार्दिक? 22 कैसे आया? 81 प्लस 36 प्लस 4, हाँ हो रहा है 111, ठीक है 121 हो रहा है। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 36, 81 प्लस 36 प्लस 4 मतलब 81 प्लस 40 121, 11 का स्क्वायर 121, सही लिखा है आपने, 22 सही बताया। तो ये डीसीएस आ गया हमारे पास एलएमएन, ठीक है। ये एलएमएन फाइंड कर लिए हमने, डी एबीसी गिवन थे तो डीआरएस से हमने डीसीएस को डिटरमाइन कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं इधर कर रहा हूं, वो छोटा सा है इसलिए यही हो जाएगा। जब देखो आप, ये दिया है कि फिर लाइन शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं कोलिनियर बताने हैं, 2 3 4, 1 पॉइंट पी, दूसरा पॉइंट क्यू ले लेते हैं, -1 -2 1, -1 -2 1 एंड थर्ड पॉइंट 5 8 7, 5 8 7। क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं? तो अपन को क्या करना है, आप पहले डीआरएस फाइंड कर लो, डीआरएस ऑफ पी क्यू अभी बताया मैंने कैसे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, मतलब -1 -2 -2 -3 1 -4, मतलब -3 -5 -3, ये किसके डीआरएस आ गए? पी क्यू के। नाउ डीआरएस ऑफ क्यू आर फाइंड कर लेते हैं, क्यू आर के डीआरएस 5 + 1 8 + 2 7 - 1, ये कितने आ जाएंगे? 6 10 6, 6 10 6। ये A1 B1 C1 ले लो, ठीक है, और ये A2 B2 C2, तो A1/A2 कितना हो गया? -3/6 -1/2। B1/B2, B1/B2 कितना आएगा? -5/10, -5/10 मतलब -1/2, ये भी -1/2। और C1/C2, C1/C2 कितना आएगा? -3/6 -1/2। दिस इंप्लाइज A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2 implies PQ is parallel to QR. This implies PQR कोलिनियर, क्योंकि एक पॉइंट कॉमन है और पैरेलल है, 1 पॉइंट कॉमन एंड पैरेलल वाली कंडीशन लगा दी हमने, इसमें पहले पढ़ा चुका हूं ये वाली थ्योरी। टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट, लीव मीटिंग। लीव मीटिंग फास्ट। कृतिका, प्रियांशी, नमन,
अनंत, कृतिका, वेदांत। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्लास कब छोड़ेंगे आप? कहाँ थे आप? क्या पढ़ाया मैंने? वेदांत, वेदांत मैंने क्या पढ़ाया क्लास में आज? सर मैं लेट हो गया था थोड़ा आज। हाँ, तुम अपसेंट हो। ओके सर। अभी आके दिखा रहे हो आप क्लास में हो। सॉरी सर। सॉरी बोल देते हो बाद में आपस। कृतिका, कृतिका,